All right, so it is time to start. We'll start with question number 13 today. A tuning fork arrangement, matlab you have a pair, produces 4 beats per second with one fork of frequency 288 CPS, that is cycles per second, that is hertz, that is 1 upon second. It's the same. A little wax is placed on the unknown fork and it then produces 2 beats per second. The frequency of the unknown fork is. All right, so this question is basically simple. So, as he said, he 288 हर्ट्ज का नॉन फ्रीक्वेंसी है सीपीएस और साइकिल्स पर सेकेंड. वैक्सिंग से पहले 4 बीट्स थे, वैक्सिंग के बाद 2 बीट्स है. तो ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है अननोन वेयर यू कैन फाइंड the difference 2 after waxing and difference 4 before waxing. तो ऑप्शन इज 292. कैसे? मैंने आपको कल बताया था कैसे करते हो. डू यू रिमेंबर? आई टोल्ड यू कि हाउ टू फाइंड इट आउट, है ना? कैसे करोगे? 288 प्लस 4 मतलब बिफोर वैक्सिंग यू शुड गेट 292, राइट? और वैक्स लगाने के बाद आफ्टर वैक्सिंग 290. तो ऐसा जो है ये एक ही ऑप्शन है बी. इट इज ऑलरेडी डन. सिंपल सिंपल क्वेश्चन था तो आई नॉट गो इनटू इट. 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस टाइप के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी in an open organ pipe is equal to third harmonic of a closed organ pipe. Fundamental frequency of open organ pipe is equal to third harmonic of closed organ pipe. Harmonic, overtone नहीं. Overtone होता तो n is fundamental, 3n, 5n and 7n is third overtone. यहाँ पे third harmonic बोला है. You know third harmonic means 3 into fundamental frequency, correct? तो यहाँ पे ध्यान देना कि if you are talking about harmonic or if you are talking about overtone, तो open pipe का fundamental और closed का third harmonic they are equal, right? If the length of closed organ pipe is 20, the length of open organ pipe is. You should know what is fundamental frequency of open pipe. V by 4 या 2. ओपन ऊपर भी एंटी नोड, नीचे भी एंटी नोड. एंटी नोड टू एंटी नोड कितना होता है? लैम्बडा बाय 2. तो लैम्बडा बाय 2 होता है एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस. तो यहाँ आएगा 2LO, 3 टाइम्स ऑफ V बाय 4LC. कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा. हमको क्या चाहिए? हमको ओपन पाइप का लेंथ चाहिए. तो LO इज इक्वल टू 2 बाय 3 LC. 2 by 3 LC, it is 20. 2 by 3 is how much? 0.66. 0.66 of 20 is how much? 0.66 of 20 is how much? 0.66 of 20 is how much? 13.2. वैसे भी अगर नहीं आया ना, 1 जा 7 जा 7 2 जा 14, 14 is थोड़ा लेस, तो 13.2 सेंटीमीटर आएगा. This is how you are supposed to solve this. Fundamental of open equal to third harmonic, not overtone. Third harmonic important है. Next question. A source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other, right? The source S is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree with the
source observer line as shown in figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is. तो ये क्वेश्चन में it is interesting because what they are telling you is आपके पास you have a listener over here which is observer in this case, and the source is moving at an angle of 60 degree with respect to observer. मतलब the source is going something like this, ऐसा जा रहा है वो, right? Okay. The thing is what you should know is कि जब भी हम लोग apparent frequency की बात करते हैं तो Doppler effect की बात करते हैं, तो you always talk about source moving towards listener or listener moving towards source or source going away from listener or listener going away from source in a straight line, है ना? So they don't make any angle as such, right? तो यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ पे they are making angle of 60 डिग्री, ऑलराइट, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब निकालते हो आप, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हो जब, और यहाँ पे लिसनर रेस्ट पे है, लिसनर रेस्ट पे है, तो V अपॉन V माइनस वी एस इंटू एन, माइनस वी एस तब जब सोर्स इज गोइंग टूवर्ड्स लिसनर, क्योंकि न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर टू मेक एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इमिटेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? गुड। हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा, मतलब दिस पार्ट, दिस कंपोनेंट, राइट? तो ये आएगा आपका वी एस कॉस 60। क्यों? क्योंकि हमेशा अलोंग द लाइन होना चाहिए, मोशन शुड बी अलोंग द लाइन, सोर्स शुड मूव इन द डायरेक्शन of observer or away from observer in a straight line, not making angle like 60 degree, 45, 30, correct? यहाँ तक क्लियर? तो नीचे जो आपने Vs लिखा है ना, this should be Vs cos 60, that's it. क्लियर? क्लियर क्लियर। तो ये आएगा V कितना है 330, 330 माइनस Vs कितना है 19.4 है, 19.4, what is cos 60? 1/2 into ये 100 दिया हुआ है, so 330 upon 330 minus 19.4/2, what is 19.4/2? 19.4/2, 9.7। तो ये आप सॉल्व करोगे, तो 19.4/2 इसको सॉल्व करो, that is 9.7, 330 minus 9.7 is 320.3 into 100। ये स्लाइटली 100 से बड़ा है, क्योंकि 300/320 स्लाइटली बिगर देन 1, तो 100 से थोड़ा बड़ा होगा। अभी तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन है, तो you don't have any other choice but to do exact calculation, so it turns out to be 103, option number A. So this turns out to be 103, right? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा look at the component of speed of source in the direction of listener, in the direction of listener, not perpendicular. Why not perpendicular? मेरे पास ऑब्जर्वर है और सोर्स ऐसा जा रहा है ना, परपेंडिकुलर जा रहा है। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? यस, नो? यस।
My question to you is, there is change in the frequency when there is relative motion between listener and source along a straight line. Source moving towards listener, listener moving towards source, both moving towards each other, both moving away from each other, one moving away from other, right? Will it make any difference if source is going perpendicular like this? The straight distance will be horizontal distance. Because ये तो मैटर करेगा, right? Will it make any difference? Yes or no? Yes. क्योंकि ये perpendicular distance will keep on changing, है ना? तो वो देखेंगे अगर आया तो. You should know this. Okay, next question. Let me get rid of this thing first. I don't want you to know this. Solve करना है. A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer towards a cliff of 15 with a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff. Question समझ लो. A siren emitting a sound. You have a siren which is emitting a sound of frequency 800 hertz. मतलब original frequency, real frequency is 800 hertz. Moves away from an observer towards a cliff. So the siren is moving towards a cliff. यहाँ पे cliff है. Okay, right. At a speed of 15 meter per second. Source का speed है 15 मीटर पर सेकेंड. और ऑब्जर्वर समवेयर हियर था तो वो उससे अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है. The frequency of sound that the observer hears in the echo reflected मतलब reflected, right? Sound जाएगा, reflect होके वापस आएगा. So what is the frequency? All right, pay attention here. The thing is, option number C is absolutely right. But I want you to know कि how do you get to this formula? For in case one, source is moving towards cliff. Right? Source is moving towards cliff. Source moving towards cliff. Correct. So apparent frequency at cliff, तो frequency reaching cliff की बात चल रही है यहाँ पे, will be V upon V minus Vs into N. क्यों? क्योंकि source moving towards listener और cliff को मैं listener मान रहा हूँ, तो apparent frequency will be greater than actual क्योंकि distance कम हो रहा है. तो ये आएगा आपका Na is equal to V. What is V? 330 upon 330 minus 15 into 800. मतलब Na is equal to 330 upon 315 into 800. इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 838 हर्ट्ज. राइट, गुड. ऑप्शन नंबर सी. लेकिन क्यों? लिसनर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर क्लिफ रेस्ट पे है. तो जब केस टू में O इज ऑब्जर्वर मतलब लिसनर एंड क्लिफ बिकम्स सोर्स, है ना? करेक्ट. जब रिलेटिव मोशन है ही नहीं, व्हाई शुड फ्रीक्वेंसी विल चेंज? समझा क्या? डिड यू गेट इट? इससे पहले के एग्जांपल में क्या था?
मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं ही हॉर्न ब्लो कर रहा हूं, मैं ही सोर्स हूं, आवाज जाएगा और आई एम मूविंग टूवर्ड्स वॉल, साउंड जाएगा, वॉल लिसनर है, मैं सोर्स हूं, केस वन. What is the frequency reaching the wall is this formula V upon V minus Vs into N. अब ये साउंड रिफ्लेक्ट होके मेरे पास ही आ रहा है, मैं ही लिसनर हूं, मैं मूव हो रहा हूं टुवर्ड्स वॉल. So wall was source, I was listener, I am moving V plus VL upon V into frequency emitted by the wall. ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलता था V plus VL upon V minus Vs into N. I was blowing horn, I was listening to it. Someone else is blowing horn and moving, and I am standing at my place and listening to it. Right? तो पहले जो फ्रीक्वेंसी वॉल पे पहुंचेगा वही फ्रीक्वेंसी वॉल रिफ्लेक्ट करेगा. सेकंड केस में वॉल मतलब क्लिफ, एस सोर्स, एंड ऑब्जर्वर मतलब मैं लिसनर. वी बोथ आर एट रेस्ट. So since both are at rest, both O and Cliff are at rest, hence no change in the frequency. Therefore, apparent frequency in second case equal to apparent in first case. There's no change. मतलब option number C. Clear? तो वो फॉर्मूला कैसे आया? वो फॉर्मूला ऐसे आया. You need to justify कहाँ से आया. Because I know ये I have written this solution, so I know कि ऐसा लिखा है उसमें. Next question. Simple है. In a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave is. You should know sinusoidal wave में you should know any particle on a sinusoidal wave, it goes from mean to maximum, come back to mean, goes to negative maximum, and come back to mean again. मतलब any particle is performing simple harmonic motion. Correct? यहाँ तक clear? तो मैं अगर चाहूं तो I can show you from here to here it takes t by 4. From here back to here it takes more t by 4. From here to here it again takes t by 4, and then back to it takes t by 4. Right? So the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero, मतलब A से O तक आने के लिए, A से O तक आने के लिए कितना टाइम? t by 4. ये कितना दिया हुआ है? 0.170. तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.170 into 4. 17/4 का कितना? 34 का डबल 68.680. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? 1 बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन 0.68, है ना? गुड. मतलब 100 बाय 68 मोर और लेस, सब बोल सकते हो. 100 by 68. 100 by 68 is between 1 and 2. Between 1 and 2 एक ही आंसर है, 1.47. Option number A. This is how you solve this question. Next question. The velocity of sound is Vs in air. If the density of air is increased 4 times, then the new velocity will be. For this, you need to know little bit of basics. वो बताना पड़ेगा, because I told you that जो भी theory में missing है वो मैं questions के टाइम बताने वाला हूँ. You know that speed of sound being longitudinal wave, is given by under root of elasticity of the medium
अपॉन डेंसिटी। इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो क्या होगा? अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है और हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, हमने एक बार वेव भेजा और वो वैसा का वैसा स्ट्रक्चर हमेशा ही रह गया, मतलब द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल नेवर कम बैक टू देयर मीन पोजीशन, करेक्ट? एंड अगर साउंड वेव की बात की तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक बार जनरेट हुए तो वो वैसे ही रहेंगे, दे विल नॉट गोइंग टू कम बैक टू देयर position, mean position ever again, which means the medium will not be capable of transferring energy from one point to another. Clear? यहाँ तक गुड। तो इलास्टिक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे E जो है दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। पहला है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन सेड कि ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? ट्रांसफर ऑफ साउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर डज नॉट चेंज, मतलब कंप्रेशन पे और रेयर फ्रैक्शन पे टेम्परेचर सेम होगा, राइट? और ऐसा प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक स्लो प्रोसेस होता है, ओके? तो उस केस में ई की जगह पे हम लिखेंगे पी, वेयर पी इज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। आइसोथर्मल क्यों लिया है? क्योंकि अजम्पशन था कि क्रेस्ट मतलब सॉरी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पे टेम्परेचर सेम रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ये। क्लियर? गुड। तो E इक्वल टू पी, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ पी बाय। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया या थ्योरेटिकली मान लो, पहले थ्योरेटिकल वैल्यू जब देखते हैं हम तो प्रेशर एच रो जी, रो किसका? मर्क्यूरी का। क्यों मर्क्यूरी का? क्योंकि प्रेशर क्या से मेजर करते हो? बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी। अगर मैं एनटीपी पे मेजर कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर में हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0.76 मीटर ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G तो 9.8 है। और नीचे जो रो है इट इज डेंसिटी ऑफ एयर 1.29। ओके, कौन सा एयर? ड्राई एयर, मॉइस्ट नहीं, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो हम जब वैल्यूज डालते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी 279 पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर पर सेकेंड। नाउ जब हम एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है 332 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे 280, कहाँ पे 332? roughly 16% of error, and this error is not an experimental error, this is not instrumental error, this is not random error। random error मतलब error due to change in the environmental condition। हमको ड्राई एयर चाहिए था और ह्यूमिडिटी आ गई, मतलब मॉइस्ट हो गया, मॉइस्चर आ गया, वो सब सोर्सेस से नहीं है। तो मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करने के बाद भी यही मिला है, इसका मतलब न्यूटन के फॉर्मूला में देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो देन लैप्लास सेड कि न्यूटन यू आर रॉन्ग, you cannot take temperature of compression and rarefaction same, so you cannot basically treat this as isothermal process। क्यों? सिंपल सा रीजन दिया उसने। he said कि मैं मान लेता हूँ frequency of sound that I am generating, you know my throat generates audible sound between 20 to 20 kilohertz, 20,000।
मैं मान लेता हूं रफली कि 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है. What does that mean? Particles of the medium will vibrate 500 times per second. 500 times per second. So it is a very fast process. तो जब फास्ट प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर को टाइम मतलब हीट को टाइम ही नहीं मिलता डिसिपेट होने के लिए. तो जो हीट कंप्रेशन पे जनरेट होगा वो रेयर फ्रैक्शन तक जाए इतना टाइम ही नहीं है. इट इज रैपिड प्रोसेस, सडन प्रोसेस. हमने सीखा है थर्मोडायनामिक्स में सडन प्रोसेस या रैपिड प्रोसेस इज एडियाबैटिक इन नेचर. तो ये बोला कि नहीं, लैपलास सेड कि दिस इज इनकरेक्ट because this process should be adiabatic or adiabatic bulk modulus is P multiplied by क्या हमने ये सीखा था, राइट, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस, राइट. तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू गामा P बाय डेंसिटी, राइट, करेक्ट. ओके, ये पता होना चाहिए. इन एनी केस, इन बोथ केसेस एज यू कैन सी, अगर आपको इतना नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में, अगले मतलब इन सम क्वेश्चन यू कैन फेस सम प्रॉब्लम. तो इन जनरल यू शुड नो दिस. व्हाट वी नोटिस हियर, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी. दिस इज व्हाट वी नीडेड, दैट्स इट. अभी हमको बोला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज Vs, density of air is increased 4 times, so V2 by V1 is rho1 by rho2, but rho2 is 4 times of rho1, so rho1 by rho2 is 1 by 4, करेक्ट. तो यहां से मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 by 4, that is 1 by 2. तो V2 is half of V1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट. तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए था कि इनवर्सली रिलेटेड है. But we have covered 2 extra questions here. What is Newton's formula and what is Laplace correction to the Newton's formula? Okay, good. Next question. A boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart. Velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every how much seconds? एंकर मतलब वो जो फ्रंट होता है बोट का. यहाँ पे इट इज रॉक्ड बाय वेव्स whose crest are, मतलब यहाँ पे जो वेव्स है उसके क्रेस्ट जो है दे आर हाउ मच अपार्ट, 100 मीटर. मतलब क्या बोला है, लैम्बडा वेवलेंथ दिया हुआ है. वेलोसिटी कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड. तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, n is equal to v by lambda. 25 by 100 is 1 by 4. 0.25 second is the frequency, right, of the wave. जितना वेव फ्रीक्वेंसी रहेगा उतनी बार ही ये जो बोट है ये बाउंस करेगा अप एंड डाउन, करेक्ट. सो इट इज सिंपल, दैट इज हाउ मच कितना सेकेंड, 0.25, but that is not correct. So why not correct? Why not correct is very simple reason. They are asking you time period and not frequency. The boat bounces up once in every how many seconds? Second is time period and 1 by second is frequency, इसलिए not correct. तो अब आप टाइम पीरियड निकालोगे 1 by n. What is 1 by n? It is lambda by v. Lambda is 100, v is 25. कितना आया, 4. ऑप्शन आया C and not D. तो बेसिक चीजें. तो they are asking you
कितने टाइम के बाद, मतलब टाइम पीरियड, नॉट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी बार ऐसा नहीं पूछा है। अगर ऐसा पूछना होता तो द बोर्ड बाउंसेस हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकंड, ओके, दैट इज फ्रीक्वेंसी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने पहले बता दिया, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन रेज टू 4 कैन नॉट बी हार्मोनिक, हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो सी और डी तो नहीं है। सो वेदर it is periodic of course, but with a period of 2 pi by omega या pi by omega, so you can write sine square omega t as, do you remember formula for sine square theta, 1 minus cos of 2 theta by 2, right? The moment you write this, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे 2 ओमेगा है, मतलब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया ना, राइट? सॉल्व हो गया। ये बताओ क्या आएगा आंसर? 2 पाई बाय, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका ओमेगा, ओमेगा ये है 2 पाई बाय टी, बराबर, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इस साइड में ओमेगा डैश इज 2 पाई बाय टी डैश, तो टी डैश इज 2 पाई बाय ओमेगा डैश, बट ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एंगल ओमेगा टी, राइट हैंड साइड में क्या है? 2 ओमेगा टी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ओमेगा? 2 पाई बाय टी, तो टी क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। राइट हैंड साइड पे ओमेगा डैश इज 2 पाई बाय टी डैश, टी डैश इज 2 पाई बाय ओमेगा डैश, बट ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा, तो कैंसिल कैंसिल, तो टाइम पीरियड इज पाई बाय ओमेगा। करेक्ट? स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला, हाँ, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों करना पड़ता है ये? व्हाई? बिकॉज साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर नॉट पीरियोडिक। कैसे पता लगा? मैंने आपको बताया था एक बार, वो वेव ड्रॉ करके, मैं वापस बता देता हूँ, नो इश्यूज। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? देखो, हाँ वो पीरियोडिक है, लेकिन पीरियोडिक का पीरियड अलग है। ये साइन वेव है, राइट? दिस इज साइन वेव। साइन वेव का पीरियड होता है 2 पाई, है ना? 2 पाई, मतलब अगर अभी क्रेस्ट पे है तो बराबर 2 पाई के बाद वापस क्रेस्ट पे आएगा। अगर अभी यहाँ पे वो ट्रफ पे है तो 2 पाई के बाद ट्रफ पे आएगा। अगर मीन पे है तो वापस से 2 पाई के बाद मीन पे आएगा। मतलब पार्टिकल नीड्स टू कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज पीरियड। करेक्ट? गुड, गुड। और पीरियड को आप एंगल में लिख सकते हो, फेज एंगल में। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ एंगल? 2 पाई। क्लियर? हर 2 पाई के बाद वापस वहीं पे आ गया। इफ आई स्क्वायर इट, व्हाट हैपेंस इफ आई स्क्वायर इट? स्क्वायर किया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव स्क्वायर, नेगेटिव का भी पॉजिटिव स्क्वायर, बराबर? ओके, करेक्ट। इसका भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। व्हाट इज पीरियड नाउ? पाई। एग्जैक्टली, पहले हर 2 पाई एंगल के बाद क्रेस्ट पे था, 2 पाई के बाद क्रेस्ट पे आया पहले। अभी क्रेस्ट पे है, पाई एंगल के बाद वापस क्रेस्ट पे है। करेक्ट? हाँ, तो ये ऐसा समझते तो भी हो जाता, तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू। देखो, you need to understand with the help of a circle. If I am standing at crest, पीरियड मतलब वापस क्रेस्ट पे कब आएगा? 2 पाई एंगल के बाद आएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? ओके, गुड। नाउ क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना?
180 मतलब पाई, करेक्ट। मैंने अगर इसको स्क्वायर किया, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करके मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ आ गया ट्रफ। अब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करने का मतलब नेगेटिव का हो जाता है पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा आ गया, तो ट्रफ बन गया वापस अभी क्रेस्ट। कितना एंगल आएगा, पाई। मतलब जब साइन का स्क्वायर या कॉस का स्क्वायर करोगे तो पीरियड हो जाएगा पाई एंड नॉट 2 पाई। तो अगर आपको इतना पता होता तो ये सारा का सारा जो हमने लिखा है जरूरत ही नहीं थी। हमने क्या लिखा, हमने लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। फॉर्मूला याद नहीं था तो फिर नहीं होता तो क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे क्वेश्चन। सो इफ यू नो सिंपल थिंग, स्क्वायर करने के बाद पीरियड हाफ हो रहा है, तो पहले पीरियड अगर 2 पाई बाय ओमेगा था तो अभी 2 पाई बाय ओमेगा का हाफ होगा, मतलब पाई बाय ओमेगा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of a sound wave is given by y equal to 0.0015 sine of 62.4 x plus 316 t। वेवलेंथ is, आपको पता है आप जब कंपेयर करोगे तो ये आता है k, ये आता है ओमेगा, ये आता है a। k आपके पास होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, है ना, k is 2 पाई बाय लैम्बडा एंड दिस इज इक्वल टू 62.4। क्लियर। 2 इंटू पाई, 3.14 का डबल 6.28 इक्वल टू 62.4, और यहाँ पे ये अपॉन लैम्बडा है, तो रफली रफली 1 जा एंड रफली रफली 10 जा, रफली रफली। तो लैम्बडा आ गया 1/10, मतलब ये आ गया 10 पावर -1, मतलब ये आ गया 0.1 यूनिट। ऑप्शन नंबर, जस्ट यू needed to compare with the standard equation, but standard equation पता होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of transverse wave traveling on a rope is given by y equal to 10 sine of 0.01 pi x minus 2 pi t। मैंने पाई को ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x and y are in centimeter, t is in second। maximum ट्रांसफर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन द रोप, रोप का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, उसका स्पीड इज गिवन बाय a ओमेगा। a is 10, ओमेगा इज 2 पाई, 2 इंटू पाई इज, अभी आपने बताया था 6.28 इंटू 10 इज 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रफली रफली 63। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a guitar string is sounded with a 440 Hz tuning fork, a beat frequency of 5 Hz is heard. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 Hz, the beat frequency is 8 Hz, the string frequency is how much? It's a quite simple question, यहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं। हमारे पास पहले जो ट्यूनिंग फोक था उसका फ्रीक्वेंसी f1 मान लेते हैं 440 Hz, और अननोन फ्रीक्वेंसी जो है गिटार स्ट्रिंग का उसको मैं f बोलता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। जो दूसरा फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर, जो दूसरा लिया है 437, और ये तो अभी भी f है, इसका डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो 437 से 8 डिफरेंस और 440 से 5 डिफरेंस, ऐसा एक ही ऑप्शन है 445। दिस इज सिंपल, तो f शुड बी 445। ओके, या तो ऐसा बोल सकते हो f with 440 should give 5 and f with 437 should give 8। तो सिर्फ ये 445 ही पॉसिबल है। 445 और 440 में 5 का डिफरेंस 5 बीट्स, 445 और 437 में 8 का डिफरेंस 8 बीट। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव 445। सिंपल।
Next question. The frequency of tuning forks A and B are respectively 3% more and 2% less than the frequency of tuning fork C. When A and B are simultaneously excited, मतलब दोनों को साथ में वाइब्रेट करवाया है, 5 beats per second are produced, right? Then the frequency of tuning fork A in hertz is. There are two methods. The one just now one of your fellow colleague explained you कि अगर हमने C की फ्रीक्वेंसी 100 ली तो A की फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा है, तो इट इज 3% more compared to C. मतलब in short you can say this is 103 hertz और B के 2% लेस है तो इट इज 98 हर्ट्ज. दोनों में 5 बीट्स होने चाहिए और है, इसका मतलब A की फ्रीक्वेंसी 103 आएगी. दैट इज व्हाट इज सेड. ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ऐसा करो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो दिस अल्टरनेट मेथड आल्सो सिंपल है. आई विल से लेट FC is FA frequency of A is 3% more compared to C. तो जो मैंने लिखा था F plus 3% of F, और आपको पता है F plus 3% is 3 by 100 F, राइट. तो ये आपका आ गया 103 upon 100 F, और FB will be F minus 2% of F, that is F minus 2 by 100 of F, that is 98 by 100 of F. I am just doing the same thing that he said orally. जो method 1 और method 2 सेम है, सिर्फ method 1 oral है by assuming some value for frequency of C, और method 2 में हम लोग value की जगह पे बोल रहे हैं F है. That's it. It's the same thing. अब जब मैं दोनों को subtract करूंगा मैं FA minus FB ही लिखूंगा क्योंकि हमको पता है A की ज्यादा है B की कम है. ये मुझे देगा 5 बीट्स और ये वैल्यू क्या है 103 by 100, right? F minus 98 F by 100. तो यहां से आपको F की वैल्यू मिलेगी which will turn out to be 100, है ना. 103 में से 98 गया, 5F upon 100 equal to 5, 5 कैंसिल, F equal to 100. तो C की फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो A की फ्रीक्वेंसी 3% मोर, मतलब 103 ही आएगा, राइट. सो इट्स द सेम, either do this way or do that way, तो एक ही बात है ये. Okay, next question. A standing wave having 3 nodes, 2 antinodes, दो loop, node, antinode, node, antinode, node, दो loops, 3 nodes, 2 antinodes, दो loop, is formed between two atoms having distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave is. तो हमारे पास दो एटम्स है, उसके बीच में ऐसा बना है, राइट. गुड. वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव मतलब बेसिकली आपको पता है यहां से यहां तक कितना होता है लैम्डा बाय 2, फिर यहां से यहां तक कितना होता है और लैम्डा बाय 2, मतलब ए से बी पॉइंट तक कितना हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो गया लैम्डा. लेकिन ए और बी दो एटम का डिस्टेंस कितना दिया है 1.21, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ. डिस्टेंस 1.21 तो वेवलेंथ भी 1.21. खत्म, इजी क्वेश्चन था. द टेंशन इन अ पियानो वायर एस. पियानो में वायर कब से आ गया, गिटार वायर होगा, इज 10 न्यूटन, राइट. What should be the tension in the wire to produce a note of double the frequency? 2001 का question, that's why I'm laughing. Abhi you don't have that old style pianos. Now you have digital ones. They don't have any string inside. Okay,
तो ओल्ड स्टाइल पियानो में होता होगा. So okay, yes, right. The tension in the piano wire is 10 Newton. What should be the tension in the wire to produce a note of double frequency? Okay, so it is a simple question. Frequency is 1 by 2L root of T by M. Since we are not changing the wire, L is constant. Since wire is not changed, mass per unit length, small m is constant. But we are changing tension, and tension will change because the frequency is getting doubled. So n is proportional to root of t. So n2 by n1 is root of t2 by t1. But n2 by n1 is 2 because frequency is getting doubled. n2 is 2 times of n1. So root of t2 by t1. So if I square it, 4 equal to t2 by t1. So t2 is equal to 4 times of t1 and t1 is 10. So 40 Newton. Option number C. This is how you are supposed to solve this question. Simple tha. Next question. A string in musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is 800 hertz. If a frequency of 1000 hertz is to be produced, then the required length will be. इन्होंने बोला कि टेंशन चेंज किया? नहीं. इन्होंने ऐसा बोला है कि हमने मास पर यूनिट लेंथ मतलब वायर ही चेंज कर दिया? नहीं. तो इसका मतलब सिंपल है, L is proportional to 1 by L. 1 by L. 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 1 by L. तो हमें क्या पूछा, रिक्वायर्ड लेंथ L2 पूछा है, तो L2 by L1 क्या आएगा, N1 by N2. L2 is equal to N1 by N2 into L1. N1 800 hertz, N2 is 1000 hertz. Initial length is 50 centimeter. 2 और 2 गए. This is 0.8 into 5 या तो फिर 1 जा और 5 जा. 5 into 8 is 40 centimeter. Option number C. Right? Good. Next question. An organ pipe is closed at one end. Has fundamental frequency 1500. What is fundamental frequency of pipe closed at one end? 4 के 2 नीचे. I have to keep a scale, big scale now. If you make a mistake, thak. Node, antinode. नोड एंटीनोड कब होता है? एक एंड पे नोड, एक एंड पे एंटीनोड कब होता है? जब एक साइड पे क्लोज हो. नोड और एंटीनोड में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 4. दैट इज इक्वल टू लेंथ. राइट? करेक्ट? गुड. तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप व्हिच अ नॉर्मल पर्सन कैन हियर. So how do you find out what is the maximum number of overtones generated which a normal person can hear? So the thing is, this is a very simple question. Why? Because let P be the maximum number of overtones, maximum number of overtones heard, और ये फ्रीक्वेंसी होगा NP is equal to 2P plus 1 into fundamental, and this should be equal to 20,000 because that is the maximum frequency a normal human ear can hear. So ये आएगा 2P plus 1 into 1500 equal to 20,000. 2 गए. 5 3s are 40s are. So 2P plus 1 equal to 40 by 3. So 2P is equal to 40 by 3 minus 1. Correct? Correct है ना? Good. नहीं, correct नहीं है. 2P plus, this is correct or no? No. Harmonic तो PN होता है. Overtone है ये. This is overtone. What overtones are present? What harmonics are present? Odd. 1 3 5. पहले को तो हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन.
तो क्या लिखोगे 2p + 1, p = 0 n, p = 1 3n, p = 2 5n, 7n, 9n, right? Good, right. But I am coming to what you are saying anyways. Okay, तो ये आ गया आपका 37/3. तो p is equal to roughly 1 जा 12 जा 12 minus 2 roughly 10. ये आ गया आपका what minus what divide. ये 1 मिनट. This is correct, isn't it? Right. ये यहाँ पे शिफ्ट किया, right? ये 40 minus 3 कितना होता है 37/3. गुड. ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया 6. 37/6 कितना होता है 6. तो कितना आ गया 6, और अप्रोक्सीमेटली है ये. ओके, गुड, बिकॉज इट इज नॉट रियली, आई मीन परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा. तो P is 6. तो 6 is the maximum number of overtones which a normal person can hear. Okay, good. Next question. A vehicle with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meters per second in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle. The observer perceives the sound to have a frequency of n plus n1. Then value of n1 is how much? Question अच्छे से समझ लो. Vehicle move हो रहा है और वो हॉर्न ब्लो कर रहा है with frequency n in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle. Vehicle यहाँ पे, observer यहाँ पे. It is moving in a line perpendicular. Correct? Is there any component of velocity in the direction of the observer? How come cos? Is there any component of velocity of source, मतलब vehicle, in the direction of observer? जैसे इससे पहले के एग्जांपल में क्या था, ऐसा था ना, 60 डिग्री था कि नहीं है. तो फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, v cos 60, राइट. तो हमने बोला था v अपॉन v माइनस v cos vs cos 60 इंटू n, बोला था क्या हमने. गुड. बट यहाँ पे इस केस में is there any component of the source, that is vehicle, in the direction of observer, that is O? Is there any component, yes or no? No, there is no component of velocity of source in the direction of listener, which means there will be no change in the apparent frequency. There will be no change in the apparent frequency. Okay, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर परसीव कर रहा है n plus n1, उसमें n1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए. n1 should be 0 because there is no component of velocity of source in the direction of listener. मतलब there is no Doppler shift, there is no Doppler effect here. I know you have confusion because you are relating, imagining it here in the real life. आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऑब्जर्वर, व्हीकल यहाँ से जा रहा है, करेक्ट. तो वो मेरे पास आएगा, फिर मुझे क्रॉस करके जाएगा. हियर यू आर गोइंग रॉन्ग बिकॉज यू आर थिंकिंग कि उसका हॉर्न जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास जाएगा. मतलब यू आर थिंकिंग कि वेलोसिटी का कंपोनेंट आपके डायरेक्शन में है, बट देयर इज नो कंपोनेंट हियर. वेलोसिटी का कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये लेना ही गलत है. ओके, गुड. तो
आई नो व्हाई दिस थिंग हैपेंस। फिर आप बोलोगे हम जब रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं तो फिर यही सिचुएशन होता है, वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, रेलवे इज कमिंग लाइक दिस, है ना, करेक्ट। हम जो रेलवे हॉर्न ब्लो कर रहा है उसका साउंड क्या सीधा सीधा ट्रेवल करता है क्या? इट कम्स टू यू। सो वो साउंड का कंपोनेंट लिसनर के डायरेक्शन में होता है, इसलिए वहां पे एपरेंट शिफ्ट है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो साउंड इमिट कर रहा है, even though source is going in perpendicular direction, but the sound emitted by the source have some component, ऐसा बोला है क्या? नहीं, तो फिर why should be there any apparent shift? No. So when you talk about real life situation like standing on a platform listening to horn of the train, उस केस में जो हॉर्न ट्रेन ने ब्लो किया था उस साउंड वेव का कंपोनेंट आपके डायरेक्शन में था, इवन दो ट्रेन का खुद का नहीं था। करेक्ट? क्लियर? गुड। Next question. So we have no more questions to discuss. This is end of module 5.